का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दूजे पहरे रहन कै वणजारी अमित्रा। विसर गया ध्यान हथो हथ नचाइए वणजारे अमित्रा। ज्यों जसदा कर कान हथो हथ नचाइए प्राणी। मादक है सत मेरा चेत अचेत। मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा। जिन जा रच रचया तिसै न जाने मन भीतर धर ज्ञान। कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, पातशाह जी के पवित्र शब्द की विचार नाल जुड़ना करिए। ये पवित्र शब्द पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का उचारण किया होया। श्री ग्रंथ साहिब जी के अंग 75 उपर सुभाएमान है। तो धन धन श्री गुरु नानक देव जी बंजारियां दे नगर जा करके ये उपदेश बख्शदे हन और उन्हां जीवां नूं ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ कि ये शब्द किथे क्यों रचिया गया। धन धन श्री गुरु नानक देव जी ज्ञान दे रहे सन कि वो जीव वणजारे मित्र। आपां सारी वणजारे हैं, वैसे संबोधन किया है उन्हां वणजारियां नूं ते नाल ही मनुख नूं भी ये कह के वंज करो वणजारियो वखर लहो संभाल। तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल। असी सारे वणजारे बन के आए हैं, सवासां दी पूंजी लैके आए हैं ते इन्हां दे वट्टे नाम दा खजाना इकट्ठा करना है। ते पातशाह सानू अगाऊं पहला ही सुचेत करते हैं ते नाल ही मनुख का सुभाव भी दसदे। जिंदगी दे 4 पहर बना के इस शब्द में जिंदगी का पहला पहर माता के गर्भ विच आउणा दसिया है। कल आपां सरवण कीता कि किस तरह ये जीव मनुख बन के माँ के उदर विच आया, गर्भ दे विच आया और उस भयानक अग्नि दे विच जिथे माँ दे खाधे होए सख्त तो सख्त भोजन भी पच जाते हैं, उस भयानक अग्नि विच परमेश्वर ने इसनूं बचाया। क्योंकि उत्थे बेनतियां करदा सी कि मैनू इस अग विचों कढ लै। खसम सेती अरदास वखाणै
ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਭਾਵ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ, ਨਰਸਾਂ, ਦਾਈਆਂ ਆਦਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਵ, ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪਰਨੀ ਖੇਡ। ਇਉਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿੰਡਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਿੰਡਦਾ ਖਿੰਡਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੈ ਪਹਿਰ ਕੈ ਬਣ ਜਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਬਣ ਜਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾ। ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਵਪਾਰੀਆ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਰੀਐ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਉਂ ਜਸਦਾ ਕਰ ਕਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਲਕ ਲਾੜ ਧਰ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਾਤ ਕਹੈ ਸੁਤ ਮੇਰਾ। ਹੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਬਣਜਾਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਦੇ, ਨਚਾਉਂਦੇ, ਖਿਡਾਉਂਦੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਤ ਕਹੈ ਸੁਤ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਏ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਏ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਅਚੇਤ ਮਨ ਮੂਰਖ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਅਗਿਆਤ ਅਚੇਤ ਮਨ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਆ,
भैन भरा मेरे आ मैनू खिडाउंदे आ, मैनू चकदे आ, ते माँ प्यो कहते आ मेरा पुत्र है मेरा पुत्र है, पर कोई भी किसी का नहीं। दोने ही किसी के नहीं हैं। समा पा के दोने एक दूजे नूं छड्ड जांदे आ। को सतनाम श्री। किसी का माँ प्यो पहला तुर जाता, किसी के पुत पहला तुर जाते आ। फरीदा इन्नी लोए नहीं देखदे आ, केती चल गई लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, जिन रच रचिया तिसे न जाने। जिस परमेश्वर ने मनुख की रचना की उस दे नाल जुड़दा नहीं, उहनूं जानण की कोशिश नहीं करता कि वह कौन है कैसा है। जिस बच्चे नूं माता दे उदर विच रख के बनाया गया शरीर इसदा, इस शरीर की रचना करने वाला रचनहार करतार जिहड़ा है वह कौन है, कित्थे रहिंदा, किहो जिहा। मनुख ने जिंदगी विच इह खोज नहीं कीती। सारियां सुख सहूलतां की कोशिश करदा है, पर सुख देण वाले नूं नहीं जाणदा। प्रीतम जी कहंदे जिन रच रचिया तिसे न जाणै, मन भीतर धर ज्ञान। ओ मूर्खा, जिन्हां ने तैनूं बनाया पैदा किया परमेश्वर ने, उस मां दी उदर विच भयानक अग्नि विच भी पा लिया। ਉਹੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸਭ ਕੁਝ ਮਚਾ ਕੇ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀਆਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੋਜਨ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੱਚਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭੱਠੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। क्योंकि ये दोनों स्टोरियां दसदियां है कि इन्हां ने अग विच बह के भी परमेश्वर नूं भुलाया नहीं। उसे तरह ही आपां सारे मां दी उधर दी अग विच भी बैठे 9 महीने, और उत्थे बैठ के आपां सारे परमेश्वर का नाम जपदे सी। इस करके वो अग भी सानूं मचा नहीं सकी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे, उथै तेरी रख अग्नि उधर माहे। और मौत उथे तेनों जमदूत जेड़े आ मार नहीं सके। सुन कै जम कै दूत नाए तेरा छड्ड जाहे। उथे तू नाम जपदा सीगा, उथे तेनों जमदूत भी दुख नहीं दे सके। मुठा लमकदा है, 4 छपेरे अग ही अग मचदी है मां दे पेट विच, पर बच्चे दे ते अग दे विचाले पानी की थैली बनाती परमेश्वर ने। जद किसी पशु का जानवर पैदा होंदा, बच्चा पैदा होंदा, आपां देखदे आ उसदे पैदा होंदियां ही बहुत सारा पानी डुलदा है। वो पानी बच्चे दे आसे पासे रखिया हुंदा है। को सतनाम श्री। उहदे विचाले बच्चा हुंदा है पानी दे, ते बाहरले पासे सब कुछ हो ही जाता है, पर पानी तो अगे अग टप नहीं सकती। इस करके वो पानी अग तो भी बच्चे नूं बचाउंदा है। पानी पिता है जगत का, प्यो की न्याई उत्थे भी पानी काम करता है। उथै तेरी रख अग्नि उधर माहे, सुन कै जम कै दूत नाए तेरा छड्ड जाहे। भाव जल बिखम सगाहों गुर शब्दी पार पाए। उस तरह ही जिमें उस भयानक अग तो बचिया, ये भव सागर दे विचों भौजल हुंदा है। भव सागर, इस भव सागर दे विचों भी तैनूं उसे नाम का आसरा लैण दी लोड़ है।
जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, पर आसरा ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਜ਼ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਐ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸੇ ਨ ਜਾਣੈ, ਮਨ ਭੀਤਰ ਧਰ ਗਿਆਨ, ਮੂਰਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਤਿਸੇ ਨ ਜਾਣੈ, ਮਨ ਭੀਤਰ ਧਰ ਗਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਜੈ ਪਹਿਰੈ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ। ਜਦ ਨੇਤਰ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। 10-15 ਕੁ ਸਾਲ ਬਚਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੈ ਰੈਣ ਕੈ ਬਣ ਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ। ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕਿਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਧਨ ਜੋਵਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਜੋਵਨ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਹਿ ਬਣ ਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਔਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ? ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇਸ ਨਰੀਆ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਨਸ਼ੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਆ? ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ, ਕਾਮਨ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਇੰਨੇ ਰਸ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ,
गुरु पातशाह कहते दस मैं नाम कित्थे रखां। तो नाम रखण नूं भोरा थां ही नहीं बचाया। बंदे ने शरीर विच अनेकां तर੍ਹਾਂ ਦੇ रसां कसां विच खुबिया होया फसिया होया। हर का नाम न चेतही बनजारे मित्रा बद्धा छुटै जित। कहन लगे तू हरि दा नाम क्यों नहीं जपदा, जिस करके तू फसिया होया छुट जावे। बद्धा हो छुटै जित। बद्धा मतलब 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪਿਆ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, शीशे मूहरे खड़ खड़ के अपने आप की सुंदरता वेखनी, मैं किड्डा सोहना हाँ। ते बाबा फरीद जी कहते फरीदा मैं भुलावा पग दा, मैं अपनी पग बड़ी सवार सवार बनदा, मैं बड़ा सोहना लगदा, पर मूर्खा तैनू ये नहीं पता फरीदा भी पग तां की तेरा सिर भी मिट्टी च मिल जाना। को सतनाम सी मैं भुलावा पग दा, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने, सिर भी मिट्टी खाए। ये सिर नूं भी मिट्टी ने लिबड़ जाना, खा जाना। पग दा की है, पग तां मैली हो ही गई, सिर भी मिट्टी विच मिल जाना। परमेश्वर बख्शिश करते हैं। पिछले शब्द विच पढ़े असी आपां, जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीअड़े पास। ਜਿਹੋ जी साडे लेखां दी कलम साडे मत्थे ते चली है ना, वो जीव दे कोल है और वो चली हुई कलम दे मुताबिक ही असी जीवन बतीत करते हैं। जिन्हां ने भागां विच गुरु नूं मिलना लिखिया हुंदा, वो गुरु नूं मिल पैंदे आ। जिन्हां धुरों ही मत्थे दे विच लिखिया, तिन्हां नूं दाता आण मिलिया। आशा जी की वार च लिखिया बचन। प्रीतम जी कहने भलिया तू उस परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा नाल क्यों नहीं जुड़दा। तीजे पहरे रैन कै बनजारे मित्रा, धन जोबन स्यों चित, हर का नाम न चेत ही बनजारे मित्रा, बद्धा छुटे जित। जे तू आज़ाद होना, मुक्त होना, बद्धा छुटना भाव मुक्त होना। मुक्त होना मतलब टेढ़ियां जूनां चों निकल के अपने घरे जाना। जिवें परमेश्वर वाजा मारदे आ, तुम घर आवो मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत। तेरा दुखां दा समां समाप्त हो गया, हुण तू घरे आ जा पुत्र। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਜੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ। ਬਈ ਤੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 5-7 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇੜੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, गावे को वेखै हादरा हदूर। हजूर का मतलब नेड़े है। सिखा तू करो मेरे नेड़े आवेगा पुत्र, नेड़े आ जा। जिवें माँ प्यो प्यार विच बच्चे नूं कोल बुलाउंदा, इवें गुरु भी सिख नूं कहना है, मनुख नूं कहना तू मेरे नेड़े आ जा। 60 साल तो पहला पहला आ जा, फिर तो तेरी मत भी मारी जानी है। फिर तैनूं जिहड़ा है
होश नहीं रहनी, अकल नहीं रहनी। उस तो पहला पहला कफ कंठ बरूदो नैनो नीर ढरे, गला रेशे नाल भर जावे, अखां चों पानी वगे, कन बोले हो जाण, हथ पैर काम ना करन, उदों पहला पहला नाम जप लै। कहो सतनाम श्री। तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत। दुखां दा समा नाश हो गया है, अपदा दा समा हुण तू नेड़े आ जा। मेरे प्रीतम जी कहने हैं, हर का नाम न चेतै प्राणी, बिकल भया संग माया। बिकल बिकल कल हुंदी है ज्ञान इंद्रे, कन भी कल है ज्ञान इंद्रा, अखां भी कल है, नासका भी कल है, हथ पैर भी कल है, गड्डियां विच भी हुंदे आ कल पुरजे, उन्हां दे जिहड़े हुंदे आ सारे ही पॉइंट अलग अलग। इसी तरह साडे शरीर ते भी लगे ने, ये भी कल पुरजे आ शरीर दे। पर एक है कल साडी ज्ञान दी, अकल कला, अकल कला है कला, पर उहदा स्वरूप नहीं, वो है बुद्धि साडी, सुरत शब्द दिमाग दे अंदर जो चलदा है। वो अकल जिहड़ी है वो बेकल हो गया, अकल तो बेकल हो गया, भाव ना तो कन्ना तो कम लैंदा, ना अखां तो कम लैंदा, ना जीभ तो कम लैंदा, ना ही हत्थां पैरां तो सेवा का कम लैंदा है। बिकल भया संग माया, क्यों होया? हुण बुद्धि तो कम नहीं लैंदा, माया दे मगन चल पिया, लालच विच, मोह ममता विच, विषय विकारां विच। इन्हां इंद्रियां तो, इस शरीर तो जिहड़ा कम लैना सी, वो लैंदा नहीं। इस करके धन स्यो रत्ता जोबन मत्ता, अहिला जन्म गवाया, ते सारा ही जन्म इसने एवें खराब कर दिता। एक बार धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जंगलों विचों लंघ रहे ने, ते एक थां बैठ गए सतगुरु भाई मरदाना जी होरां दे नाल उदासियां दौरान। थोड़ी दूरी ते एक मुर्दा पिया, शरीर पिया मरिया होया जंगल दे विच। ते बाबा जी उतों थोड़ी दूरी ते दरख्त हेठां बैठ गए, कोई मरदाने नूं कौतक विखाउणा सी साडे वास्ते। ते भाई मरदाना जी की देखदे आ, एक बघियाड़ आया उस मांस नूं खाण वास्ते, उस मुर्दे दे शरीर नूं खाण वास्ते आया बघियाड़, और उस नूं खाण दे लई ते उहनूं सुंघना शुरू कीता। उहने खाण तो पहलां उहने उहदे पैरां नूं सुंघिया, फिर अगे हथ आ गए, हत्थां नूं सुंघिया, फिर उहदी छाती नूं सुंघदा है, मूँह नूं सुंघिया उसने, कन्नां नूं सुंघिया, अखां नूं सुंघिया, नक नूं सुंघिया, फिर मत्थे नूं सुंघिया, पैर तो लैके सिर तक सारा उहनूं सुंघदा रहा। ते सुंघ संघ के ते सिर जा मार के पुट्ठा जा ते तुर गया। ते कहने भाई मरदाना जी कहने महाराज की गल, ये जानवर मांस खाना है, मांसखोरा जानवर है, ते इहदे सामने एक मुर्दा लाश पई आ, ये उसनूं पैरों तो लैके सिर तक की करदा रहा, देखदा रहा, ते खाधा क्यों नहीं, चुप करके तुर गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, मरदानिया तैनूं पता क्यों तुर गया? भुख तां उहनूं बहुत लगी सी, उहदी खुराक पई सी सामने मांस, पर उहने क्यों नहीं खाधा? पहला उहने चैक किया भी ये खाण योग है भी कि नहीं। कहो सतनाम सी। खाण योग मतलब बेहा नहीं, बेहा ताज़ा नहीं वेखिया उसने, उन्हें वेखिया कि जिस मनुख का मैं शरीर खा रहा, कि यह मनुख ने कोई चज का काम किया कि नहीं किया। कोई सतनाम सी। कि ये पैरों के विचों कोई गुरु घर वाल जाण दी, धर्म दे वाल जाण दी खुशबू आउंदी आ? कि ये पैरों करके कदे सत्संग विच गया नहीं गया? फिर हथ सूंघे, हत्थां नाल कोई सेवा की इसने? हथ भी इहनूं चंगे नहीं लगे।
फिर इसने मूँह सूंघिया, हिरदा सूंघिया, छाती सूंघी इसकी भी ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਸ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਾਪੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਐਸਾ ਨਗੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇ ਫਲ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ, ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਐਸਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਕਲ ਤੇ ਕਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਐਂਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਿਕਲ ਮਤਲਬ ਕਲਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਈ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਈ। ਪਰ ਇਹ ਅਣਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਣਹਦ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਰਜ ਤਮ ਸਤ ਤੇ ਕਲ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਰਜ ਤਮ ਸਤ ਕਲ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ। ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲਿਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜੋੜਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਲਾ ਬੋਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਗੜੀ ਸੋ ਥਾਣ ਜੋੜ ਨਹਾਰੇ ਜੋੜੀਆ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇ ਬੱਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
जे तो मकैनिक आ तो सीधा चक के तार नूं उत्थे जोड़ दूगा तो बल्ब जग पैणगे। पर कई बारी आपां नूं आप जोड़नी पैंदी है तो आपां नूं लभदा नहीं थां भी ये कित्थों टुट्टी है। फिर असीं एक सिरा फड़ के दूजे थावां ते धर के वेखदे आ ते जदों सही थां ते जाके लग जांदी है उहदे बल्ब जग पैंदा। फिर दूजा वेखण वाला कहना इत्थे ही आ इत्थे ही आ इत्थे जोड़ आ प्रकाश हो गया सी। कहो सतनाम श्री। भाव साडी टुटी हुई है अंदरों, कित्थों टुटी है सानू नहीं पता। गुरु मकैनिक दा सीधी जोड़ दिंदा फड़ के भी इत्थे जुड़, पर गुरु कृपा करके जे किते चानचक जुड़ जे फिर भी प्रकाश हो जाता है। कहो सतनाम ज्ञान दा। ते बाबा जी कहते मेरे गुरु ने ऐसी जोड़ी आ हुण मैनू पूर्ण भरोसा है 100% 101% की लगड़ी सोथान जोड़नहारे जोड़िया। जोड़नहारा गुरु टूटी गंढनहार गोपाल सर्ब जियां आपे प्रतपाल। उही रब है उही गुरु है। उन्हें हुण सही जोड़ती आ। लगड़ी सोथान जोड़नहारे जोड़िया लहरी लख सह आन। हुण भावें माया दियां लखां लहरां आउण लखां झटके माया मारे हुण मेरी ये टुट नहीं सकूगी। कहो सतनाम श्री। टुटन दे ना मां बिरी मेरा प्यारा हुण मैनू टुटन नहीं देवेगा अपने नालों। तोड़ी ना टूटै छोरी ना छूटै ऐसी माधो खिंच तनी। ओ तार टुटी हुई आ साडी। कहो सतनाम श्री। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अवर वरताया। गुरु नूं यही बेनती करनी है महाराज जोड़ दिओ कित्थों टुटी आ सानू तो पता नहीं लगदा गा, पर अंदाजा है उसका जिद्दे जुड़ गई उहदे ज्ञान हो जाऊगा, उहदे सोझी आ जाऊगी, उहदे तू उत्थे पहुँच जाएगा जिथे जम्मण तो पहला जुड़िया होया सी। प्रीतम जी कहते हर का नाम न चेतै प्राणी बेकल बेकल। ज्ञान की कला टुट गई है ये कोलों। को सतनाम श्री। बेकल भया संग माया और ये अंदरों वो ताकत घट गई आ। कला विच शक्ति आ ते जब कला काम ना करे फिर शक्तिहीन हो गया मनुख। प्रीतम जी कहने धन स्यो रत्ता जोवन मत्ता अहिला जन्म गवाया। धर्म से तीवा पार न कीतो। ना इन्हें आके धर्म का व्यापार किया। लोगों ने धर्म नूं व्यापार तो बना लिया, धर्म नूं माया कमाउण दा साधन बना लिया, पर धर्म का व्यापार करना सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। सवासां दे नाल नाम जपना ये धर्म का व्यापार सीगा। बंदे ने यह नहीं किया, धर्म नूं माया की कमाई का साधन बना लिया। को सतनाम श्री। धर्म का व्यापार करना सीगा गुरु वाले बनना। अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी है अमुल भंडार। ये व्यापार करना सीगा, ये तो कीता नहीं गा। इनू भी माया कमाउण का साधन बना लिया। को सतनाम श्री। धर्म सेती व्यापार न कीतो। ना कोई सच का कर्म किया ना धर्म का व्यापार किया। कर्म ना कीतो मित्र। मित्र तो बहुत बनाए दुनियावी तौर पर। कहता मेरे नाल इन्ने लोग आ, मित्र बड़े बनाए पर चंगा कर्म नहीं बनाया। इस करके ये मित्र नहीं बनाया जिन्हें उथे काम देना सी। को सतनाम सी। कर्म ना कीतो मित्र भाव मनुख के 3 तरह के मित्र है। एक रिश्तेदार साख संबंधी मैन पावर ये मित्र समझदा है। राजिया कोले बड़े मित्र है पर अंत को नांगे ही पाए पधारे। कोई नाल नहीं गया, जुत्तियां भी इत्थे रह गई, उन्हां समान भी इत्थे रह गया, शरीर भी इत्थे रह गया। इते भय तो कहाँ पे भूपत किन्ने। माते मतंग जरे जर संग अनोप अतंग सुरंग सवारे। कोट तुरंग कुरंग सकूद तपौन के गौन को जात निवारे। इते भय तो कहाँ पे भूपत अंत को नांगे पाए पधारे। इन्नी मैन पावर होंदियां होया भी खाली हथ कल्ले ही गए।
दूजा मित्र है माया, ते माया मनुख दी उन्ना चिर मित्र है जिन्ना चिर यह जिउंदा। जद मर गया वो माया अगले दूजे दी हो गई। पहला साडे बुढ़ियां दी सी, हुण साडी आ। कल नूं जे जवाक होए तो वह लै जाणगे, नहीं तो रिश्तेदार वंडियां पाउणगे, फलाने फलाने नूं इन्ना इन्ना दे दिओ। कोई सतनाम सी, साडी फेर ना रही वो माया। ये मित्र भी नाल ना गया। ते जिहड़े मनुख मित्र बनाए रिश्तेदार साख संबंधी, ये मित्र इहदा शमशान घाट तक गया। जिन्ना चिर उहदा संस्कार नहीं करता उन्ना चिर खड़े आ। जब संस्कार हो गया नाल दी नाल असीं भी भज दौड़ हो गए, चलो यार चलीए, लेट हो ही जाने आ, फिर बस नहीं मिलनी। को सतनाम सी, हुण कोई संबंध ही नहीं गा। संस्कार होया, जिथे बहुत सारा बालन पाया गया उत्थे एक रीत है, मैं देखदा कई बारी जिहड़े मगर गए हुंदे आ ना, वो डक्के तोड़ तोड़ के विसरदे आ चिखा दे। डक्का तोड़ के भी डक्के नाल अग वध गई, नहीं अग नहीं वधी, अपने दिमाग दे विचों संबंध तोड़ के अग च पाता। ना तू साडा ना असी तेरे। को सतनाम सी। डरदे आ ना भी किते भूत बन के ना आ जे। मनदियां दे पीर पराउणे भी आपां इहनूं प्यार करांगे तो किते भूत बन के ना आ जे। मित्रा सत श्री अकाल, तू आप दा हिसाब किताब कर ते असीं आप दे घरे जाने आ। को सतनाम श्री। तीजा मित्र है कर्म, ते कर्म जिहड़ा है ये आत्मा दे नाल उपर तक जाऊगा। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, ना कोई रब दे नेड़े है ना कोई दूर है। उत्थे तां अमलां दे होण नवेड़े, जात किसी ने पुछनी नहीं। को सतनाम। इत्थे जिहड़ा धक्का करदे आ लोग मुलाजमां नाल, हेठलियां नाल, गरीबां नाल, उन्हां दा हिसाब किताब फिर उत्ते हुंदा भी आ जा पुੱਤ, तैनूं मैं पुछदा दुनिया च की लैण गया सी ते की करके आया। वो है ना चंदू। जहांगीर कहना जी तुहाडा दोषी चंदू आ, तुसीं इहनूं फड़ के लै जाओ। हरगोबिंद साहब नूं कहना, जदों हरगोबिंद साहब ने डराया ना भी तेरे घर दे विच साडे पिता जी दी शहीदी होई आ, तेरी राज दे विच, ते ओहदा जिहड़ा दोषी है तू भी है ते चंदू भी है। जहांगीर कहना जी मैनूं तां पता ही नहीं इस गल दा। कहंदे पता किवें नहीं, ते फिर तू राजा कर है जे तैनूं पता ही नहीं गा तेरे राज दे विच की हो रहा है। इहदा जिम्मेवार चंदू भी है जिन्हें शहीद किया, ते तू भी है। ते हिसाब किताब हुण गाहां ही करांगे सोडे नाल। जहांगीर हथ बन खड़े आ, कहना ना जी मैनूं तां बख्श दिओ, आ चंदू बैठा इहनूं फड़ के लै जाओ, जो मर्जी सज़ा दिओ। बाबा जी कहते इत्थे सज़ा हुंदी नहीं पूरी। जेडी वड्डी गलती हुई है ना, एक ब्रह्म ज्ञानी नूं कतल करना, शहीद करना, तसीहे दे के, इस दा जिहड़ा सज़ा दुनिया च है नहीं। दुनिया च किड्डी कि सज़ा, धौन वड्ड के मार देंगे, पर ये थोड़ी आ। इत्थे सज़ा दे के फिर इस नूं नरकां विच भी सिੱਟਣਾ, बाकी सज़ा उत्थे मिलनी है। जहांगीर हथ बन खड़े आ जी, ना ना मैनू तो बख्श दिओ, माफ़ कर दिओ। जो 5-7 वारी उन्हें माफियां मंगिया, पातशाह कहते ठीक है फिर फड़ा साडा दोषी, कहते लै जाओ फड़ लो। फिर चंदू नूं फड़िया जहांगीर दे कोलों दिल्ली तो, फिर उस दे गल विच संगली पा के कुत्तियां विच बन्नदे रहे, और थां थां ते संगतां ने उहदे सिर विच छत्तर मारे। दिल्लीओं चल के लाहौर तक उहदे पैंदियां रहियां। फिर लाहौर आके उसकी मौत हुई। पर पातशाह कहने ये भी सज़ा थोड़ी है। तो कर्म जिहड़ा है ये मनुख का तीजा मित्र है, ते बंदे ने चंगे कर्म नूं मित्र बनाया ही नहीं गा। धर्म सेती व्यापार न कीतो, कर्म न कीतो मित। दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। कर्म न कीतो मित कहो नानक, तीजै पहरै प्राणी, धन जोवन स्यो चित। तीजा पै सारी जवानी, बुढ़ापा आउण तो पहला पहला धन दे नाल, जोवन जवानी दे नाल
विषय विकारां दे नाल, जीव दे स्वादां दे नाल, इंद्रियां दे स्वादां नाल जुड़िया रहा, ना नाम जपिया, ना धर्म दा काम कीता, ना धर्म दी गल कीती, ना धर्म दे विच प्रवेश कीता। अखीर की हुंदा फिर चौथा पहर आ जांदा। चौथे पहरे रैन कै वणजारे मित्रा, लावी आया खेत। लावी हुंदे आ कणक वड्ढण वाले मजदूर। हुण तां तैनूं वड्ढण दा टाइम आ गया। को सतनाम, तू पक गया, तेरी उम्र खत्म होने वाली है, तू पक गया ते हुण तैनूं वड्ढण दा टाइम आ गया। लावी आया खेत, जिवें कणक पक जाती है तो फिर जिमींदार कहना जाओ बई मेरी कणक वड्ढे आओ सारी। तो फिर पक्की हुई कणक नूं वढ़दे वढ़दे फिर ये नहीं वेखदे कि विच कई बूटे हरे खड़े ने हजे कच्चे आ, वो भी नाल ही वड्ढे जांदे आ। कोई सतनाम श्री। इस करके मनुख हुण तां तेरा जान का समा आ गया। आ 3 पहर तू खराब कर दिते जिंदगी दे। लावी आया खेत, जा पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा, किसी न मिलिया भेत। कणक वड्ढण वाले तां दिस जाणगे पर तैनूं मारन वाले दिखाई नहीं दिंदे। पता नहीं कदों संघी मरोड़ लैण। घटना रोज़ घटदी आ, इन्नी लोई नहीं वेखदे आ खेती चल गई आ। कल परसों डॉक्टर पलटा, उसका नौजवान वड्डा पुत्र जिहड़ा सरदार सी, पग बन्नदा सी, चंगा भला सीगा, पर रात नूं तुर गया। कोई सतनाम, पता नहीं ना लग्या। ये सामने घटना मैं तां याद किया भी वेखो साडियां अखां दे सामने वेखदिया वेखदिया बंदा चंगा भला ही चढ़ाई कर जाता है। कोई सतनाम श्री। ये बुढ़ापा भी पता नहीं साडे ते आवे जां ना आवे, जां बचपन विच ही तुर जाइए। कोई सतनाम कि जवानी च मर जाइए। पर बुढ़ापा तो पक्की निशानी है। जदों कणक सुनहरी हो जाती है तो पक्की निशानी है हुणे वड्ढण वाली हो गई है। पता नहीं बचपन विच ही वड्ढे जाइए कि जवानी च वड्ढे जाइए। को सतनाम श्री। भेत चेत हर किसे न मिलियो, जा पकड़ चलाया। धर्मराज कहना जाओ फलाने फलाने नूं लियाओ, टाइम हो गया उहदा। को सतनाम श्री। जमदूतां ने फड़िया ते लै चले, जित दिहाने धन बड़ी साहे लए लिखाए। मलक जे कन्नी सुनी दा मूँह निखाले आए, जिंद निमाणी कढी है हड्डा कूकड़ काए। साहे लिखे ना चलनी, जिन्ने सवास लिखे है उदों बाद अगला सवास नहीं चलन देना तेरा। जिंदू को समझाए, समझा अपने आप नूं कि मौत आने वाली है, उदों पहला पहला नाम जप लै। को सतनाम श्री। जिंदू को समझाए, जिंद वहोटी मरन वाल लै जासी परनाए। प्रीतम जी कहते भेत चेत हर किसे न मिलियो, जा पकड़ चलाया। झूठा रुदन होआ दुआले, खिन मैं भया पराया। फिर असी सारे आसे पासे बैठ के रोने आ, हाय मेरा मर गया। कोई पति कहती है, कोई पुत कहती है माई, कोई बजुर्ग है मेरा मित्र सी, मेरा दोस्त सी, मेरा प्यारा सी, मेरा सखा सी, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगले लै गए विचों कढ़ के, जिमें चौलों चो बाल कढ़ लईए, दुध चो बाल कढ़ लईए। को सतनाम श्री। प्रीतम जी कहने भेत चेत हर किसे न मिलियो, जा पकड़ चलाया। झूठा रुदन होआ दुआले, खिन मैं भया पराया। उथे जाके साई वस्त परापत होई, जिस स्यों लाया हेत। मरन वेले जिहड़ा फुरना चकिया, अगला जन्म उस वस्तु नूं प्राप्त करने लई देता। अंत काल जे लड़के सिमरे, हाय मैं मर गया, मेरे बच्चों का की बनो। सूकर जोन वल वल औतरे, जा तेनू सूर बनाने आ। 18-20 होणगे तेरे मगर मगर लई फिरी। क्योंकि बंदे नूं पता नहीं ना भी किहड़ा फुरना बनावा ते मिलूगा की अगों। लाटरी की निकलनी आ, पता पाती लाटरी, वो निकलती किवें आ पता नहीं। जो सोचिया मरन वेले जैसा फुरना चकिया, वो फुरना पूर्ण करने वास्ते इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाते परमेश्वर ने फिर ओहे जा ढो ढवाया, ओहे जा जन्म दिता। अंत काल जे मंदिर सिमरे, हाय मैं मर गया, मेरी कोठी कोठी च रहना है, या फिर भूत प्रेत बन के तुरिया फिर प्रेत जोन होए बल बल औतरे।
मरदे मरदे की बनाया ये पता नहीं लगता, कौन किधर नूं गया, क्योंकि ये मरन वाले नूं भी पता है कि उन्हें अंत वेले की सोचिया। को सतनाम श्री। आखिरी पंक्ति विच बाबा जी कहते साई वस्त प्राप्त होई जिस्यों लाया हेत, ते फुरना उही उठूगा जिथे जिंदगी भर तुसी मोह पाया हेत लाया। प्यार किया, मरन वेले भी उन्हें याद करोगे ना जिहदे नाल जिंदगी भर प्यार रहा। जे नाम नाल प्यार रहा अंत काल नारायण सिमरे, फिर मरदा कहेगा वाहिगुरू लै चल हुण तां टाइम आ गया। को सतनाम श्री। फिर उहदे घरे चले जाओगे आपदे। अंत काल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, बन तलोचन ते नर मुक्ता पितंबर वा करे दे बसे। प्रीतम जी आखिरी पंक्ति विच कहंदे साई वस्त प्राप्त होई जिस्यों लाया हेत। पर फिर पातशाह खीर दे कहंदे कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, ओ मरदा मरदा ही नाम जप लै, शायद एक चीत जे एक चिंत्यायो, काल फास के बीच न आयो, शायद फिर भी तू निकल जावे। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, ला भी सुनिया खेत, नहीं तो मित्रा मौत का समा आ गया, ते वड्ढण वाले जमदूत तैयार है, ते जान का समा आ गया है। इस करके पहले पहरे रहन के बनजारे मित्रा, हुक्म पया गरवास, उड तप करे अंतर करे बनजारे मित्रा, खसम सेती अरदास। जिहड़ियां अरदासां जम्मण तो पहला करदा सीगा वो जिंदगी विच भी करदा रहे, ताकि अंत वेले भी तू वो अरदास करके चक्कर चों निकल के परमेश्वर वाल चलिया जावे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला शब्द भी इसे विषय ते ही है। श्री राग महला पहला, पहले पहरे रहन के बनजारे मित्रा, बालक बुद्ध अचेत। अगले शब्द में फिर जिंदगी के 4 पहर शुरू करते हैं बचपन तो ही, जन्म लैन तो ही। ये विचार आप कल दे दवाना भी सरवण करांगे। बोलदे अनेका अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।